اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع اور عمل ہے یہ دعائے منزل کا ہے، اور یہ عمل جادو اور نظر بد کا انشاءاللہ تعالی سب سے بہترین اور اچھا توڑ ہے۔ یہ ہر قسم کے جادو کو، ہر قسم کی نظر بد کو اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا بھی توڑ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آج کی ویڈیو خصوصاً ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو اکثر کمنٹس میں مجھے لکھتی ہے کہ ہمارے شوہر کسی اور کے ساتھ ہیں، یا ان میں بری عادتیں ہیں، اور یا ان بہنوں کے لیے جن کے اچھے رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا۔ تو جو بندہ پریشان ہے یا کسی مصیبت کا شکار ہے، جیسے جادو ہو گیا، نظر بد ہوگی یا تعویذات کا، اور وہ قرآن سے اور حدیث سے اپنے لیے علاج نہ ڈھونڈ سکے یا علاج نہ کر سکے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی اس شخص کی کوئی بدقسمتی ہوگی۔ ہمارے قرآن میں دنیا جہان کا ہر قسم کا حل اور علاج ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بریفنگ بھی دوں گا۔ یہ شیاطین یا جادوگر کس پر ہوتا ہے، اور ہم منزل کو کس طرح پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس سے ہم کس طرح فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ میں اللہ کی رحمت پر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جس طرح میں بیان کروں گا آپ اسی طرح منزل پڑھیے گا، اسی طرح عمل کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ساری مشکلاتیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میرے عزیز، یہ جادو اور ٹونے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا تھا، لیکن اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا، اور اس کی وجہ سے ہمیں کیا ملا؟ اسلام ملا۔ لیکن دوسری ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کسی پر کالا علم اور جادو نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انہیں بتا دے کہ ہم پر جادو ہے تو وہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بہت علم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک بات اور، جس کسی پر جادو ہے یا نظر بد ہے یا کسی پر نہیں ہے، تو دونوں ہی صورتوں میں منزل کا سننا اور منزل کا پڑھنا نہایت فائدہ مند ہے۔ منزل کا سننا اور پڑھنا آپ کے رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے، آپ کی مشکلات پریشانیاں بھی ختم کرتا ہے، آپ سے جادو ٹونا جنات کا اثر بھی زائل کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو کا اثر زیادہ تر ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کا اثر قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوں اور وہ ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اس کی ذات پر توکل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے میں 2 آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ یہ شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں، یا شیاطین کے اثرات کن لوگوں پر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ زیادہ تر ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو نفاق ہے، 1 نمبر کے جھوٹے ہیں، اور دوسرا جو بہت بڑے گنہگار ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ شریعت پر چلتے ہیں تو جادو اور شیاطین کا اثر نہیں ہوگا، یا اگر خدا نہ خواستہ ہوگا بھی تو کم ہوگا۔ اور دوسری ایک اور چیز جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جنات نے یہ تبلیغ کی اپنی قوم میں
کہ इंसानों में बाज इंसान ऐसे हैं जो हमसे डरते हैं, लिहाजा हमारी सरकशी ऐसे इंसानों पर बढ़ गई। यानी हमने जब देखा कि हम इंसानों से डरें, खुद इंसान हमसे डर रहा है, तो हम उस पर सरकश होकर उन्हें नुकसान पहुंचाने लगे। तो मेरे अजीजों, इससे भी क्या पता चलता है कि जो लोग जन्नत से ज्यादा डरते हैं, जो इन चीजों से ज्यादा मुतासर होते हैं, जन्नत का असर उन लोगों पर ज्यादा होता है। और अगर आप अल्लाह पर तवक्कल करें और इन चीजों का असर कबूल ना करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत सारी बुरी चीजों से बच जाएंगे। और दूसरा ये मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि हमने मंजिल किस तरह पढ़नी है और उससे किस तरह फायदा हासिल करना है। एक बात, जो जादू या जन्नत वाली जगह होती है, जादू या जन्नत ये सब शैतानी असरात हैं, तो वो जगह नापाक होती है और गंदगी से भरी होती है। तो इस्लाम ने हमें कितना खूबसूरत दर्स दिया कि सफाई निसफ ईमान है। और उसके अलावा आप रोजाना नमाज की पाबंदी करें। जब आप वजू में होंगे तो शैतान आपके करीब नहीं फटकेगा। मंजिल के पढ़ने के साथ साथ आपने इन चीजों पर भी अमल करना है और गुनाहों से बचें, जितना ज्यादा से ज्यादा बच सकते हैं बचें, क्योंकि ये मैंने आपको कुरान की आयत का तर्जुमा बयान किया है कि ज्यादा असर किन पर होता है। तो चलते हैं मेरे अजीज भाइयों अपने मौजू की तरफ कि जो मेरा भाई या बहन ये कहते हैं कि किसी भी किस्म के असरात हैं या कोई भी ऐसी बुरी चीज है, इवन के इससे अगर आपको बुरे ख्वाब भी आते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैं बयान करूंगा आपने उसी तरह पढ़ना है, तो वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। दुआए मंजिल गूगल से या गूगल प्ले स्टोर से मोबाइलों में भी इजीली डाउनलोड हो जाती है। वो नहीं तो बाजारों से भी आसानी के साथ दुआए मंजिल मिल जाती है। तो सबसे पहले अपने घर में सफाई का खास ख्याल रखें और आप भी 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ें। और ये ज्यादा बेहतर है कि जिस बंदे पर कोई असरात हो या जिसको कोई मुश्किल हो तो वो खुद पढ़े। जिस तरह किसी भाई के काम में, कारोबार में, बिजनेस में कोई रुकावटें हैं, ख्वाह वो इंसानों की तरफ से है, ख्वाह वो जन्नत की तरफ से है, जादू का असर है, तो इंशाअल्लाह ताला मंजिल से वो भी दूर होगा। और जिस मेरी बहन को कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, कोई रूहानी किस्म की, या उसके रिश्ते में रुकावट है, या किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, तो वो भी खुद पढ़े। इसको आपने 2 टाइम पढ़ना है एक दिन में, यानी 24 घंटे में आपने 2 बार इसको पढ़ना है। एक नमाज फजर के बाद और दूसरा नमाज मगरिब के बाद। इसको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। साफ सुथरे कपड़े पहने और दुराने मंजिल पढ़ते हुए आपने बोलना किसी से नहीं। पानी का एक गिलास साथ में रखें। अव्वल आकर 11 बार दूध इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ें और आपने मंजिल पढ़नी है शुरू से आखिर तक, और आपने पानी पे दम करना है, 3 फूंके मारनी है। और उसके बाद फिर आपने 11 बार दूध इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ना है। और अगर आप किसी के लिए ये अमल कर रहे हैं या कर रही हैं, तो पानी पे भी दम करें, और अगर हो सके तो पानी उसको पिला दें। और अगर ये नहीं हो सकता तो पानी पे दम करें और तसव्वुर में उसके दिलो दिमाग पर 3 फूंके मार दें। अगर तो आपके पास तस्वीर हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना तस्वीर नहीं है तो सिर्फ तसव्वुर में ही आप दम कर दें। मेरे अल्लाह के नाम में, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। और मंजिल में बहुत सारी चीजें यकजा की गई है। अगर एक एक चीज के बारे में मैं आपको बयान करने लगूं तो ना जाने ये वीडियो कितनी लंबी हो जाए। तो मुख्तसर ये है कि इसमें सूरह फातिहा भी है, आयतुल कुर्सी भी है, सूरह बकरा की आखिरी आयत भी है, और इसमें सूरह हशर की आयत भी है, और भी बहुत कुछ है। ये रोजाना पढ़ें और तब तक पढ़ें जब तक आपको वाज़ेह तौर पर यकीन ना हो जाए कि सारा कुछ आपके ऊपर से खत्म हो गया है। तो जो आपने दम किया हुआ पानी है उसका आपने करना क्या है। अगर तो कोई बीवी अपने शौहर के लिए पढ़ती है हर किस्म की बुराई से पाक करने के लिए भी, तो भी शौहर को पिला दें। और
खुद भी पिए और घरों में छींटे भी लगाए। जो बहन या बेटी ये कहती है कि रिश्तों में रुकावट है, तो वो भी इसको पड़े पानी पे दम करे, खुद भी पिए और अपने घरों में चारों कोनों में दीवारों पर छिड़काव भी करे। ऊपर नीचे जमीन पे दम किया हुआ पानी नहीं गिरना चाहिए। इस मंजिल में इतनी सारी चीजें हैं कि जो बंदा रोजाना पढ़ेगा या सुनेगा तो अल्लाह ताला की रहमत से वो हर किस्म की बुराई से दूर रहेगा। मेरे अजीज बच्चों, मैंने बहुत तफसील के साथ आपको बयान किया है कि जादू और जन्नात किस तरह और किन लोगों पर आते हैं और उनसे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। फिर भी अगर किसी चीज की समझ ना लगी हो तो नीचे कमेंट्स में अपना सवाल लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे वक्त मिला मैं आप लोगों को जरूर उसका जवाब दूंगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नए वजीफे अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।